ناول نیم طلب عشق، تحریر مریم غفار، ایپیسوڈ نمبر 3۔ کیسا رہا وہاں سب؟ اسٹڈی روم میں چھائی خاموشی وہاب صاحب کی آواز نے توڑی تھی۔ اسٹڈی ٹیبل پر کوہنیاں ٹکاتے وہاب صاحب نے 2 سیٹر صوفے پر خاموشی سے پیپر ویٹ کے ساتھ کھیلتے وجدان کو دیکھ کر بات کا آغاز کیا تھا۔ صحیح رہا ڈیڈ؟ بس صحیح، وہاب صاحب کے پوچھنے پر وجدان نے لاپرواہی سے شیشے کی ٹیبل پر پیپر ویٹ گھماتے جواب دیا تھا، اور اس کے اس جواب پر وہاب صاحب حیران ہوئے تھے۔ جی بس صحیح، وہاب صاحب کی حیرانگی پر وجدان نے لب دباتے ہوئے کہا تھا۔ تمہاری جان تک جانے کا خطرہ تھا اور تم کہہ رہے ہو بس صحیح رہا؟ وجدان کی اس قدر لاپرواہی پر وہاب صاحب نے گزرے لمحات کو سوچتے ہوئے کہا تھا، جس پر وجدان نے سختی سے لب دباتے گردن ہلانے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ خدا نخواستہ، اگر تم ان لوگوں کے ہاتھ لگ جاتے تو سوچا ہی کیا ہو سکتا تھا؟ وجدان کو دیکھتے وہاب صاحب نے جو نہ ہوا تھا اسے سوچتے فکر سے پوچھا تھا۔ ڈیڈ، جو ہوا ہی نہیں اس کے بارے میں کیا سوچنا؟ آپ کیوں وہ سوچ رہے ہیں جو ہوا نہیں اور نہ کبھی ہوگا؟ وہاب صاحب کو پریشان دیکھ وجدان ان کے پاس آتا ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے گویا ہوا تھا، جس پر وہاب صاحب نے ایک خفگی بھری نظر اس پر ڈالی تھی۔ او کم آن ڈیڈ، اگر یہ ڈر آڑے آنا تھا تو پہلے روکا کیوں نہیں آپ نے مجھے؟ پیار سے وہاب صاحب کے دونوں کندھے دباتے وجدان نے مسکرا کر کہا تھا۔ میں نے پہلے کبھی تمہیں نہیں روکا تو اس دن کیسے روکتا؟ وجدان کے کندھے دبانے سے وہاب صاحب کو سکون مل رہا تھا، جس پر وہ آنکھیں موندے ہی وجدان سے گویا ہوئے تھے۔ اب جب فیصلہ لے لیا، اس راہ کو چن لیا تو ڈیڈ اب کیا ڈرنا؟ اب تو صرف مزے کرنے ہیں۔ وہاب صاحب کی بند آنکھیں دیکھ کر وجدان نے انہیں پرسکون کرنا چاہا تھا۔ صحیح کہہ رہے ہو تم وجدان ہاشمی، ویسے ہی مزے کرنے ہیں نا جیسے تم جرمنی میں کر رہے تھے۔ وجدان کی بات کا مفہوم سمجھتے ہوئے وہاب صاحب نے گردن موڑتے سختی سے اسے گھورا تھا، جس پر وہ ڈگمگایا تھا۔ نہیں ڈیڈ، میں نے کہاں مزہ کیا، آپ وہاں دیکھیں، ایسے دبے گا نہیں۔ وہاب صاحب کے اچانک پیچھے مڑنے پر وجدان خود کو سنبھالتا ہوا انہیں آگے دیکھنے کا کہتا مسکرایا تھا۔ اگر یہ بات ہے تو اس گوری کے ساتھ اتنا فری کیوں ہو رہے تھے تم؟ وجدان کی طرف سے منہ موڑتے ہوئے وہاب صاحب مسکرائے تھے۔ وہ ارے وہ سیما ڈیڈ، وہ تو فرینڈ، جسٹ فرینڈ ڈیڈ۔ وہاب صاحب کے جان لینے کے ڈر سے وجدان نے ذہن لڑاتے ہوئے بہانہ تلاش کیا تھا۔ ایک تو سیما تھی اور دوسری کا کیا نام تھا، یاد ہے تمہیں یا میں یاد کرواؤں؟ وجدان کے منہ سے سیما کا نام سن کر وہاب صاحب نے اسے مزید پوچھا تھا۔ ڈیڈ، آپ یہاں کام کرتے تھے یا پھر مجھ پر نظر رکھتے تھے؟ وہاب صاحب کی بات پر اب کے بعد وجدان ان کے سامنے آتا بولا تھا۔ میں تمہارا باپ ہوں اور ایک باپ ہونے کے ناطے میں تمہاری ہر خبر پر نظر رکھتا ہوں، اور میں ہی کیا ہر باپ رکھتا ہے اپنے بچوں کے کرتوتوں پر نظر، اس لیے احتیاط کرنا۔ وجدان کو حیرت میں مبتلا ہوئے دیکھ وہاب صاحب نے آنکھوں کو چھوٹا کرتے ہوئے اسے سختی سے تنبیہ کیا تھا۔ ایسا کچھ نہیں کیا، میں نے بس اچھی بات چیت ہو جاتی تھی ڈیڈ، پر یہ تو آپ الزام لگا رہے ہیں مجھ معصوم پر۔ وہاب صاحب کے کرتوت کہنے پر وجدان اس الزام پر بے یقینی سے وہاب صاحب کو دیکھتا ڈرامائی انداز میں کہہ رہا تھا۔ معصوم اور تم ایک وقت میں 2 لڑکیوں کو لے کر چلتے ہو اور بات کرتے ہو کہ تم معصوم ہو، میں تمہارا باپ ہوں، میں نے کبھی کسی دوسری عورت کو نہیں دیکھا، اور میرا بیٹا 2 کو ساتھ، واہ! وجدان کا خود کو معصوم کہنا وہاب صاحب کو ہنسنے پر مجبور کر گیا تھا۔ تبھی کہکہا لگاتے ہوئے کہا تھا، ڈیڈ یار کام تھا ان سے بس اور کچھ نہیں۔ وہاب صاحب کے لہجے میں شک محسوس کرتے وجدان نے صفائی پیش کی تھی۔ میں کیسے مان لوں، صرف کام تک ہی تھا وہ گھومنا گھمانا؟ وجدان کے کہنے پر وہاب صاحب نے آئی برو اچکاتے پوچھا تھا۔ آپ کی قسم صرف کام؟ اگر ایسا کچھ ہوتا تو آپ کو نہ بتاتا؟ وہاب صاحب کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتے وجدان نے انہیں سچ بتایا تھا۔ ایک بات ہے، ویسے بھی مجھے وہ دونوں ہی کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی، کیونکہ میری بہو سب سے الگ ہونی چاہیے وجدان، سمجھے؟ اگر تمہیں نہیں ملے تو مجھے بتا دینا، میں خود ڈھونڈ لوں گا اپنی بیٹی۔ وجدان کے دل کی بات جان لینے کے بعد وہاب صاحب نے سکون کی سانس بھرتے ہوئے وجدان کے خوبرو چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر وجدان نے مسکرا کر اپنے پیارے ڈیڈ کو دیکھا تھا، جو پیچھے 3 سال میں اس کی غیر موجودگی کی وجہ سے کافی کمزور ہو گئے تھے۔ موم سو گئی ہیں؟ وہاب صاحب کے ساتھ باتوں میں مصروف وجدان کی نظریں وال کلاک پر پڑی تو اسے آئمہ بیگم کا خیال آیا۔ ہاں بھائی، وہ تو سو گئی ہیں، تمہیں پتا ہے تمہاری موم کو اس کی بیوٹی کتنی پیاری ہے، اگر وہ رات کو جاگیں گے تو ڈارک سرکل پڑ جائیں گے۔ وجدان کے آئمہ بیگم کا پوچھنے پر وہاب صاحب مسکرائے تھے۔ میرے خیال میں ڈیڈ اب آپ کو بھی سو جانا چاہیے، رات کافی ہو گئی ہے، راتوں کو جاگ جاگ کر آپ نے اپنا حال دیکھیں کیا کر لیا ہے۔ رات کے 1:30 بجتے ہوئے دیکھ وجدان نے فکر مندی سے کہتے ہوئے انہیں بغور دیکھا تھا، جس پر وہاب صاحب گردن ہلا گئے تھے۔ تم جا کر آرام کرو، میں بھی آتا ہوں۔ وجدان کو سونے کا کہتے وہاب صاحب نے پاس رکھی بک اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، پر پلیز سونے چلے جائیے گا جلدی، گڈ نائٹ۔ وہاب صاحب سے ملتا ہوا وجدان انہیں جلدی سونے کا کہتا ہوا جانے کے لیے مڑا تھا۔
माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया है हमारा बेटा। पहले हम इसे जल्दी सोने का कहते थे और अब ये हमें जल्दी सो जाने का कहता है। वक्त कितनी जल्दी गुजर गया है पता ही नहीं चला। खिड़की के सामने खड़े होते वहाब साहब ने जगमगाते चांद को देखकर दिल में सोचा था, गुड मॉर्निंग सबको। येलो जीन्स पर रेड कलर की शॉर्ट शर्ट पर अपने सुनहरी बालों की हाई पोनीटेल बनाती हुई उफक ने जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरते बुलंद आवाज में सबको मॉर्निंग विश की थी। गुड मॉर्निंग गुड़िया, गुड मॉर्निंग। उफक को देखकर आतिफ ने मुस्कुराकर कहा था और उसके साथ ही बैठी मिशेल ने मुस्कुराकर उसे देखा था। पापा कहाँ हैं भाई, और ये सब क्या हो रहा है? मामूल के मुताबिक आज चौहान विला में काफी चहल पहल थी, जिसे नोट करती उफक ने डाइनिंग टेबल पर आतिफ के दूसरी साइड पर आते हुए पूछा था। पापा अभी अभी वॉक से लौटे हैं, ये सब उन्हें पता है और हम यहाँ हैं। सहराब साहब का बताते आतिफ की बात बीच में ही काटते सीढ़ियां उतरते उफक के तीनों भाइयों ने हम आवाज कहा था, गुड मॉर्निंग। डाइनिंग टेबल पर बैठते आदिल, आसिम और वहाज ने गुड मॉर्निंग विश किया था। भाई देखे वहाज भाई को। वहाज ने आतिफ के बराबर में बैठी उफक के बाल खींचे थे। वहाज नहीं भाई। उफक की शिकायत पर फौरन अमल दरामद हुआ था और वहाज सीधा होता उफक से अनजान बना था। पापा से बात हुई आपकी गुड़िया कल? आदिल को कल रात वाली बात याद आई थी, तभी उसने उफक से सहराब साहब के मूड का पूछना चाहा था। हाँ हुई थी भाई, पापा नाराज भी थे काफी पर अब मान गए हैं। ब्रेड पर बटर लगाती उफक ने सरसरी सा जवाब दिया था। और तो कुछ नहीं बताया ना तुमने पापा को गुड़िया? उफक के जवाब पर आदिल ने माथा पीटना चाहा था, तभी आसिम सीधा पॉइंट पर आया था। हाँ गुड मॉर्निंग। अभी उफक कोई जवाब देती कि सहराब चौहान ऑफिस के लिए तैयार होते उनके सर पर आन पहुंचे थे और उन्हें सामने देख सबको चुप लगी थी। गुड मॉर्निंग पापा। ब्रेड प्लेट में रखती उफक उठकर हमेशा की तरह सहराब साहब के गले में हाथ डालती, उसके गाल पर प्यार करती, उन्हें मॉर्निंग विश करती मुस्कुराई थी। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ पापा। उफक के प्यार भरे विशिंग पर सहराब चौहान ने अपनी प्यारी बेटी के सर पर प्यार करते हुए पूछा था। पापा ये सब किस चीज की तैयारी है? मुलाजमों को बड़े बड़े कार्टून्स रखते देख उफक ने सहराब चौहान से पूछा था। यतीम खाने भेजना है ये सब सामान, और आप भी साथ जाएंगी, और आपके साथ आदिल और आसिम जाएंगे। कल हुए वाक़े के बाद सहराब साहब बहुत डर गए थे, और ये सब उसका ही नतीजा था कि उन्होंने आज उफ़क़ के नाम पर यतीम खाने में मौजूद बच्चों के लिए उनकी ज़रूरत के सामान के साथ अच्छी खासी रकम भी भेजने का इंतज़ाम किया था। और अब उफ़क़ के पूछने पर सहराब साहब ने अपना सारा सोचा हुआ सबके गोशगुजार किया था, जिस पर आदिल, आसिम ने इस बात में सर हिलाया था, जबकि उफ़क़ को वहाँ जाने में मसला था। पर पापा मेरा जाना ज़रूरी क्या है? सहराब साहब के मुंह से अपना नाम सुनकर उफक उदास हुई थी। उफक को यतीम खाने जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर वो हमेशा सहराब साहब की बात मानती उनके साथ चली जाती थी। पर आज जब वो खुद नहीं जा रहे थे तो उसे भी जाने में एतराज था। हाँ आपका जाना जरूरी है उफक, और आप जाएंगी, और कोई बात नहीं करनी मुझे इस बारे में। मिशेल बेटा चाय दे मुझे। उफक के इनकार करने पर सहराब साहब ने दो टोक लहजे में कहते बात खत्म की थी, जिस पर उफक ने मासूम सी शक्ल बनाते अपने भाइयों को देखा था, जो रोजे मामूल की तरह खामोश थे। गाड़ी पर डेंट कैसे पड़े आतिफ? चाय की सिप लेते सहराब साहब ने एक नजर खामोशी से सबको देखते आतिफ से पूछा था, और वही सुकून से चाय पीते आतिफ को इच्छू लगा था। जी पापा। मिशेल के पीठ सहलाने पर सांस बहाल होते ही आतिफ ने सहराब साहब को देखते हुए पूछा था, जिस पर उन्होंने आईब्रो उचकाई थी। वही जो सुना आप सबने। आतिफ के सवाल पर उसे गुस्से से देखते सहराब साहब ने चाय का कप मेज पर रखते हुए कहा था, पापा वो आप नहीं उफक, मैं इन सब से बात कर रहा हूँ। उफक ने बताना चाहा तो सहराब साहब ने उसे उंगली उठाते चुप रहने का कहा था। आदिल, आसिम, वहाज बोलो क्या हुआ है गाड़ी को? आदिल आसिम को भी खामोश देख सहराब साहब ने रोबदार आवाज में वहाज से पूछा था। वो वो पापा मैं और आसिम भाई दोस्त से मिलने गए थे तो गाड़ी लग गई थी। हाँ पापा हमारी गाड़ी लग गई थी। हाँ हाँ सबको चुप देखकर डर से आलू घुटकते वहाज ने साफ झूठ बोला था। अभी वहाज के झूठ बोलने की देर थी कि सबने उसका साथ दिया था, और वही उफक ने अफसोस से अपना माथा पीटा था। अच्छा तो वो लड़का कौन था जिसने ये काम किया? अपने बेटों के झूठ से बाखूबी वाकिफ सहराब चौहान ने पुरसकून लहजे में पूछते सबको एक बार फिर सोच में डालते चाय की घूंट भरी थी। लगता है सब कोई झूठ सोच रहे हो। 2 मिनट से चाय खामोशी को सहराब चौहान ने तोड़ा था। नहीं तो पापा। तुम चुप करो वहाज, शर्म नहीं आती बाप से झूठ बोलते हुए तुम सबको? वहाज ने भी कुछ कहना चाहा था कि सहराब साहब एकदम भड़के थे और सबको सांप सूंघ गया था। मुझे उफक ने सब बता दिया था कल ही, और मैं सब तुम सबके मुंह से सुनना चाह रहा था, और तुम सब मिलकर झूठ पर झूठ बोल रहे हो। दोनों हाथों की सख्ती से मुट्ठियां बंद करते सहराब साहब ने एक उन्हें देखा था, जो उस वक्त शर्म से सर झुकाए हुए थे। जानता हूँ तुम सब अपनी बहन को बचाने के लिए ये झूठ बोल रहे हो, पर अपनी बहन को शायद तुम सब जानते नहीं हो। वो तुम्हारी बहन बाद में, मेरी बेटी पहले है।
मुझे ये अच्छा लगा जानकर के मेरे बेटे अपनी बहन के राज रखना जानते हैं। सबके चेहरों के रंग उड़े देखकर सहराब साहब के लबों पर मुस्कुराहट रेंगी थी। तभी ही वो मुस्कुराते हुए गोया हुए थे और वहीं सब बेयकीनी से मुस्कुराते हुए सहराब चौहान को देख रहे थे। उन सब में एक उफ़क़ ही थी जो नम आँखों से मुस्कुराती हुई अपने भाइयों को देख रही थी, जो कितनी देर से उसकी वजह से डाँट सुन रहे थे, पर किसी एक ने भी शिकवा ना किया था। सॉरी पापा, हमें लगा आप नाराज़ हो जाएँ उफ़क़ से इसलिए। सहराब साहब को मुस्कुराते हुए देख आतिफ ने सबकी तरफ से माफ़ी माँगी थी। ओफ़ो! तुम रो रही हो, क्या हुआ गुड़िया? सहराब साहब को देखते वहाज की नज़र उनकी दाएं जाने बैठी उफ़क़ पर पड़ी थी, जो नम आँखों से अपने भाइयों और पापा को देख रही थी। नहीं तो भाई, पता नहीं क्यों आंसू आ रहे हैं, या तो शायद फिल्मों में आते हैं, खुशी के आंसू हैं। वहाज की बात पर सब परेशान हुए थे, जिस पर उफ़क़ ने आंखों में आई नमी दूर झटकते हुए मुस्कुराकर कहा था, आई लव यू ऑल। फ्लाइंग किस देती उफ़क़ ने अपने पापा और भाइयों को देखते हुए कहा था, वी लव यू मोर देन योर। अपनी अपनी जगह से उठते सब उफ़क़ के गिर्द जमा होते उसके गिर्द घेरा बनाकर खड़े हुए थे। मैं भी तो हूँ आतिफ, आप यहाँ आ जाओ बेटा, अपने लिए जगह बनाती मिशेल ने मासूमियत से कहा था, जिस पर सोहराब साहब ने उसे अपने पास बुलाया था। 2 साल पहले मिशेल की वालिदा और वालिद एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था और कोई बहन भाई ना होने की वजह से मिशेल घर में बिल्कुल अकेली हो गई थी। तभी सहराब साहब ने एक फैसला लिया और उस फैसले को पाया तकमील तक पहुंचाया और आतिफ और मिशेल की शादी करवा कर ही छोड़ा। शादी बड़ों की रजामंदी पर हुई थी। चुनाचा मिशेल आतिफ की खालाजाद होने के साथ साथ उसकी काफी अच्छी दोस्त भी थी और आतिफ को काफी हद तक पसंद भी थी। तो आतिफ को भी उससे कोई एतराज ना था। 2 साल में मिशेल ने उस घर को ऐसे संभाला था जैसे वो कभी उस घर के लिए नई ना थी और यही वजह थी कि वो जल्द ही सबके दिलों में घर बना गई थी। मिशेल को बाप का प्यार और भाइयों का साथ और हर वक्त सर खाने वाली बहन सब मिले थे और शोहर का एतबार मोहब्बत ने उसे जिंदगी की तरफ लौटा दिया था। अब बस मिशेल को एक ही चीज की ख्वाहिश थी कि अल्लाह पाक उसे जल्द से जल्द औलाद की नेमत से भी नवाज दे। खुद से मिलने को बहुत दिल करता है, बहुत कुछ सुना है अपने बारे में। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े वजदान ने खुद को बगौर देखा था। व्हाइट पैंट पर व्हाइट ही कलर की शर्ट पहने वो उस पर ब्राउन कलर का ब्रेजियर पहनता खुद पर शेर पड़ता हुआ मुस्कुराया था। वाह वजदान हाशमी, तुम्हारे क्या कहने। बालों को जेल से सेट करता वो मसरूर हुआ था। होता भी क्यों ना भला, वो था ही इतना हैंडसम कि गुजरने वाली हर लड़की क्या लड़के भी उसे पलट कर देखते थे। 6 फुट से निकलता दराज कद, कसरती जिस्म, कुशादा पेशानी, गोल्डन वाइट स्किन कलर, शहद रंग छोटी उकाबी आंखें जिनमें रोब वाज़े दिखाई देता था, हल्की हल्की बेड में नजर आते गुलाबी लब जिन्हें वो हमेशा सख्ती से एक दूसरे में पेवस्त किए रखता था। यस, बालों को फुर्सत से सेट करते वजदान ने डोर पर होती दस्तक पर बदमजा होते आने की इजाजत दी थी। सर, आपको वहाब साहब बुला रहे हैं। इजाजत मिलते ही मुलाजमा ने उसे वहाब साहब का पैगाम दिया था, जिस पर वो बगैर मुलाजमा को कोई जवाब दिए उसे जाने का इशारा करता अपना मोबाइल उठाने के लिए मुड़ा था। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग मॉम। डाइनिंग टेबल पर दाखिल होता वजदान मुस्कुराकर मॉर्निंग विश करता अपने लिए चेयर घसीटता हुआ बैठा था। गुड मॉर्निंग वजी, बड़ा टाइम लगा दिया तुमने तैयार होने में। वजदान को मुस्कुराकर जवाब देते हुए आयमा बेगम ने उसे बगौर देखते हुए पूछा था। बस, आप जाएं। रात को नींद नहीं आई, फिर आंख देर से खुली मॉम। ब्रेड पर जैम लगाती मुलाजमा को रोकते उसे जाने का कहते वजदान ने आयमा बेगम को देखकर कहा था, क्यों अपने ही घर में नींद नहीं आई तुम्हें? वजदान के मुंह से नींद न आने की बात सुनकर आयमा बेगम ने हैरानगी से पूछा था। होता है भाई, अब 3 साल बाद लौटा है तो कुछ तो असर होगा ना। आयमा बेगम की हैरानगी से खुली आंखें देख वहाब साहब ने मुख्तसर कहा था, जिस पर वजदान ने भी इस बात में गर्दन हिलाई थी। वैसे कहाँ जाने की तैयारी में हो तुम? कहाँ जाना है इसे, ये मेरे साथ ऑफिस जाएगा? वजदान की तैयारी देखकर आयमा बेगम ने मायने खेजे से मुस्कुराते हुए पूछा था, जिस पर वजदान के कुछ कहने से पहले ही वहाब साहब बोले थे, डैड, ये किसने कहा कि मैं ऑफिस के लिए तैयार हुआ हूँ? वहाब साहब की बात पर वजदान सदमे से चिल्लाया था और वहाब साहब मुस्कुराए थे। वजदान, आज मेरी न्यू इन्वेस्टर के साथ मीटिंग है और मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो। आज होने वाली मीटिंग वहाब साहब के लिए बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि आज वो कराची के मशहूर बिजनेसमैन सहराब चौहान के साथ पार्टनरशिप का ख्वाब पूरा करने के लिए बेताब थे और वो अपनी इस खुशी में अपने बेटे को अपने साथ शामिल करना चाहते थे। तो मॉम को लेकर जाएं। वहाब साहब के साथ जाने से इनकार करते वजदान ने उन्हें मशवरा दिया था, जिस पर आयमा बेगम को ऑरेंज जूस अपने गले में अटकता महसूस हुआ था। नहीं भाई, मैं तो नहीं जा सकती, मेरे अपने सैलून में बहुत से काम पेंडिंग में पड़े हैं। वजदान के मशवरे पर उसे घुरी से नवाजती आयमा बेगम ने साफ पल्ला झाड़ा था। डैड, मेरा जाना क्या जरूरी है? आयमा बेगम के इनकार करने पर वजदान ने मिस्कीन से शक्ल बनाते हुए पूछा था। तुम्हारी मॉम नहीं जाना चाहती तो ठीक है, तुम भी अगर नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही देख लूंगा। वजदान के रिएक्शन पर वहाब साहब को मायूसी हुई थी, जब ही वो बगैर उसे देखे अपने नाश्ते में मसरूफ हुए थे।
डैड मैं चल रहा हूँ आपके साथ, पहले ये तो पता चले मीटिंग किसके साथ है, कौन है ये मशहूर बिजनेसमैन। आयमा बेगम के इशारा करने पर वजदान ने उन्हें जाने के लिए हाँ कहा था और चौहान साहब के मुतल्लिक पूछा था। 1 मिनट। वजदान के चलने पर वहाब साहब खुश होते उसे बताने लगे थे कि उनके बजते फ़ोन ने उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा किया था। हेलो। ठीक है शहजाद, तुम सारी तैयारी मुकम्मल कर लो, मैं बस कुछ ही देर में पहुंचता हूँ। रेस्ट वॉच में टाइम देखते वहाब साहब ने अपनी दूसरी साइड से पीए की बात सुनते उसे तैयारी करने का कहते हुए फ़ोन बंद किया था और जल्दी में जाने के लिए खड़े हुए थे। क्या हुआ डैड? वहाब साहब को जल्दी में जाते देख वजदान ने पूछा था। तुम मेरे साथ ही चलो वजदान, नाश्ता तो कर लेते वहाब। वजदान को अपने साथ लेते वहाब साहब जाने लगे थे। उन्हें जाता देख आयमा बेगम ने फिक्र से कहा था, हम ऑफिस में कुछ खा लेंगे मॉम। आयमा बेगम को परेशान होते देख वजदान उन्हें जवाब देता वहाब साहब के पीछे हुआ था। हमारी मीटिंग का टाइम 11 का था, पर सहराब चौहान अभी 20 मिनट बाद ही मीटिंग करना चाहते हैं। उन्हें कुछ ज़रूरी काम से जाना है, वो पहले मीटिंग करना चाहते हैं। वजदान की हमराही में चलते वहाब साहब ने उसे शहजाद से हुई सारी बात बताते राहदारी अबूर की थी, जबकि वहाब साहब के मुंह से सहराब चौहान का नाम सुनती आयमा बेगम साकत हुई थी। जारी है। डियर रीडर्स एंड लिसनर्स, कैसी लगी आपको आज की एपिसोड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एपिसोड अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई एपिसोड आप तक पहुंचती रहे। कल मिलते हैं एक नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।